جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میرا پیغام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور یہ جو آپ عظیم کام کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے اور ہمارے درمیان ایک واسطے کے کردار ادا کر کے انسانیت تک پیغام حق کے پہنچانے میں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چند لوگوں سے یہ لے رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اور بہت عظیم کام ہے، اور یقیناً جب یہ کام اخلاص کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سننے والوں تک جہاں پیغام حق پہنچتا ہے وہاں ان کو اس پیغام کے ذریعے عمل کرنے اور انسانیت تک رہنمائی کرنے کا بھی اخلاص کی برکت سے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، اور یقیناً اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا اور آپ سے لے رہا، اور آپ کی یہ کاوشیں اللہ تعالیٰ اپنے برگاہ میں قبول۔ رحان صاحب، گزارش اس طرح سے ہے، میں آج کل بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ انسانی حقوق کو پڑھ رہا ہوں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں بھائی انسانی حقوق اقوام متحدہ کے جنیوا کنونشن کے بعد سے انسانیت کو ملے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی انسانی حقوق مغرب نے دنیا کو دیے۔ میں یہ کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، 1450 سال پہلے سرور کونین، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، فخر الرسول، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو حقوق دیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو شریعت لائی، اور یہ بات بڑی واضح ہے، نبی علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواجوں کو چھوڑتے ہوئے، توڑتے ہوئے، اسلام کے نظام عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے انسانیت کے لیے جن حقوق کا تعین کیا ہے، جو حقوق نبی علیہ السلام نے متعین فرمائے ہیں، آج تک نسل انسانی کو انسانی حقوق کے نام سے جتنے بھی حق ملے، اس کی بنیاد 1450 سال پہلے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو اصول ضوابط دیے، وہیں پہ انسانی حقوق بھی دیے۔ گویا کہ انسانی حقوق کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت کو دے دی۔ ایک بات رحان صاحب میں یہ کہتا ہوں، انسان کو زندہ رہنے کا حق بھی اسلام نے دیا ہے، عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے اور مرد اور عورت کی رہنمائی کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اہم بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس وقت دنیا کے ہر انسان کے لیے زندہ رہنے کا حق بھی ہے، زندگی کے گزارنے کا حق بھی ہے، زندگی کے نشیب اور فراز طے کرنے کا حق بھی ہے۔ اگر کسی کو حق نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اپنی آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا، تو وہ صرف ایک مسلمان ہے، جا وجہ اس پر پابندیاں ہیں۔ خان صاحب، ایک بات جو میں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک رپورٹ میں نے پڑھی بی بی سی کے حوالے سے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی کہ امریکن ایک ادارے نے ریسرچ کی، 2010 میں پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد تھی
वो 23%, गोया कि इस वक्त जो लोग हैं दुनिया के अंदर उनकी तादाद 100 का 23वां हिस्सा है, और 2050 के अंदर जाके जो मुसलमान हैं उनकी तादाद 23% से बढ़कर 30% तक चली जाएगी, क्योंकि इस वक्त यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब जो है वो इस्लाम है। उस वक्त जब 30% को क्रॉस कर देगी, उस वक्त हर तीसरा इंसान मुसलमान और कलमा को होगा। और जब इस सदी का एंड हो जाएगा, उस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बसने वाले इंसान कलमा को मुसलमान। साहब यही वजह है इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। लिहाजा इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं, मुख्तलिफ कोशिशें काविशें की जाती हैं। कभी NGOs को इस्तेमाल किया जाता है, कभी मुख्तलिफ लाबियाँ काम करती हैं, और मकसद ये होता है किस तरह इस्लाम दुनिया में आम होता जा रहा है, इस्लाम का निज़ाम अदल व इंसाफ दुनिया में आम होता जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए और किस तरह इसके रास्ते में रुकावटें डाली जाए। तो इस हवाले से राना साहब एक अहम बात जो मैं करना जरूरी समझता हूँ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल इंसदाद जबरी तब्दीली मजहब के नाम से सेनेट के अंदर और सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में उसका मुसव्वदा पेश किया है। उस बिल के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पे है कि भाई 18 साल से कम उम्र में कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा 18 साल के कम उम्र में जो आदमी कलमा पढ़ेगा उसके कलमे का कोई एतबार नहीं होगा, रियासत उसको गैर मुस्लिम ही समझेगी। 18 साल से जायद उम्र के बाद जब एक आदमी कलमा पढ़ना चाहता है, मुसलमान होना चाहता है, तो वो सेशन जज को एक दरख्वास्त देगा, भाई मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, और दरख्वास्त देने के एक हफ्ते के अंदर अंदर सेशन जज उस मुसलमान होने वाले शख्स को बुलाएगा, उसका इंटरव्यू करेगा। उसके पास 90 दिन के लिए वो शख्स जुडिशली और आइन के अंदर यह है कि भाई वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास 90 दिन तक रहेगा, और इस दौरान उसके कहने पर उसके मजहबी स्कॉलर से भी मुलाकात करवाई जाएगी, जो मजहबी स्कॉलर उसको इस्लाम के हवाले से तबलीग और पैगाम हक और पैगाम रुश्द व हिदायत सिखाएंगे। तो उसके बाद वो शख्स अगर 90 दिन की कस्टडी में रहने के बाद तकाबुल अदियान और इस्लाम की स्टडी ऑफ इस्लाम का मुताला करने के बाद कलमा पढ़ लिया, तो सेशन जज उसको इस्लाम का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। अगर वो कलमा न पढ़ा और वो मुतनफ़िर हो गया, तो उस वक्त सेशन जज उसको सर्टिफिकेट भी जारी नहीं करेगा। और फिर जो मजहबी स्कॉलर हैं जिन्होंने मजहब के हवाले से मुआमलत की है उसके साथ, राना साहब उसके लिए ये होगा कि 3 से 5 साल कैद उसको सुनाई जाएगी और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये जो बिल है, ये जो बिल हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पेश होने जा रहा है, दुख की बात यह है तारीख़ इंसानी में 2 रियासतें हैं। एक रियासत मदीना जो नजरिए की बुनियाद पर बनी है, ये दूसरी रियासत है रियासत पाकिस्तान जो नजरिए की बुनियाद पर बनी। और रियासत मदीना के अंदर जब मैं देखता हूँ कि भाई कलमा पढ़ने वालों की जो उम्र है वो तो है ही 18 साल से कम। मैं जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र देखता हूँ तो 7 साल उम्र है, एक रिवायत में है 10 साल उम्र है, एक में 12 साल उम्र में जब कलमा पढ़ा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ने 12 साल की उम्र में कलमा पढ़ा है। हज़रत अबू मूसा शरी ने 12 साल की उम्र में पढ़ा। हज़रत मुआज़ और मुअव्वज़ जिन्होंने ग़ज़वा बदर में अबू जहल का कत्ल किया, उन्होंने 12 साल की उम्र में पढ़ा। यहाँ तक कि वो एक छोटा बच्चा यहूदी, बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। जब बीमार हुआ नहीं आया, नबी इयादत के लिए उस यहूदी के पास चले गए। घर जाके देखा कि वो यहूदी बच्चा बीमार है और वो जान कनी के आलम में है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम कलमा पढ़ लो। उस यहूदी बेटे का बाप उसके पास खड़ा था, वो इधर नबी अलैहिस्सलाम को भी देख रहा और वह अपने बाप को भी देख रहा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा कलमा पढ़ लो। जब नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ने का कहा तो उसके वालिद ने कहा कि अते अबुल कासिम, कि तुम अबुल कासिम की बात मान लो। अबुल कासिम राना साहब नबी अलैहिस्सलाम की कुनियत थी।
जब उसने अपने बाप के कहने पे नबी अलैहिस्सलाम की जो कही हुई बात थी उसको इताअत करते हुए कलमा पढ़ लिया, नबी अलैहिस्सलाम जब वहां से निकले तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरी वजह से इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। जब मैं देखता हूं तो वहां रियासत मदीना के अंदर कलमा पढ़ने वालों की जो उम्र है वो तो है ही 12-13 साल है, 10 साल है, और यहाँ जो रियासत मदीना के दावेदार हैं, जो रियासत मदीना के डिगर पे इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, उस मुल्क के अंदर रियासत मदीना की बुनियादी फलसफे को ही नहीं समझे, तो इस मुल्क के अंदर कलमा पर पाबंदी लगाई जा रही कि भाई मैं ये समझता हूँ ये इंसदाद जबरी तब्दील मजहब, ये कलमा पढ़ने में रुकावट डालने का मजहब बिल है, लिहाजा इस बिल को हम मुस्तरद करते हैं। और इसकी वजह यह है, कल लाहौर के अंदर मजलिस अहलार इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तमाम जमातों का इकट्ठ हुआ। इसमें पाकिस्तान शरीयत कौंसिल के मरकजी कायद और सेक्रेटरी जनरल जनाब अल्लामा जाहिदुर राशिदी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अमजद खान लाहौरी साहब, इसी तरह जमात इस्लामी के हाफिज फरीद प्राचा साहब समेत मुल्क पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की क़यादत पेश हुई, और उन्होंने आज 24 सितंबर को यौम एहतजाज के तौर पर मनाने का ऐलान करते हुए ये बात वाज़ेह की है, भाई ये बिल जो बिल आइन के मुतसादिम है, जो बिल शरीयत के मुतसादिम है, जो बिल कुरान सुन्नत के मुतसादिम है, जो बिल दुनिया के अंदर राइज निज़ाम अदल व इंसाफ के खिलाफ है, जो बिल आलमी कवानीन के जो इंसानी हुकूक के नाम पर हैं उसके खिलाफ है, ये जो बिल शहरी हुकूक के खिलाफ है, ऐसे किसी बिल को हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। और राना साहब, इससे पहले भी IMF के कहने पे, इससे पहले भी फाटफ के कहने पे या यहूदी लाबी के कहने पे जितनी भी कुरानदाजी की गई है, हमने उसको भी मुस्तरद किया है और इसको भी मुस्तरद कर। हम ये कहते हैं राना साहब कि भाई आप कानून साजी करना चाहते हैं, आइए, इस मुल्क को कानून साजी की जरूरत है, लेकिन किस महाज आप कानून साजी करें। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सहाबा, अहले बैत और इस तरह ज़ाज मुताहरात उम्महातुल मुमिनीन की शान में गुस्ताखी करने वाले की कानून साजी करें और सख्त से सख्त कानून साजी करें। हम ये कहते हैं बबांगे दोगल, दुनिया के किसी मुहज़्ज़म मुआशरे के अंदर किसी की तौहीन ना मुहज़्ज़म मुआशरे के अंदर है, न दुनिया के किसी मजहब का हिस्सा है। दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि भाई आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को बुरा भला कहें, सबो शतम करें। हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के मुरव्वजा कानून के तहत हम आप अगर कानून साजी करना चाहते हैं आप करें, हम आपके साथ हैं, ताकि ऐसी कानून साजी तो ना करें। राना साहब, मुल्क के पाकिस्तान पहले बना था, इस मुल्क की बुनियाद था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज दुख की बात यह है, कलमे के नाम पे बनने वाले मुल्क में कलमे पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही, और दुख की बात यह है कि भाई समझ नहीं आती हमें ये किसके कहने पे कानून साजी की जाती है, किसके कहने पे कलमे से रोका जा रहा है। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ राना साहब, इस्लाम का ये कतन मिजाज नहीं है। इस्लाम जबरन किसी को कबूल करने पर आमादा नहीं करता। आप देखिए, उठाइए सूरह कहफ, अल्लाह फरमाते हैं फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे तो ईमान वाली जिंदगी इख्तियार करे, जो चाहे कुफर का रास्ता इख्तियार करे। सूरह बकरा 30 पारे में अल्लाह फरमाते हैं ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई इकराह नहीं, कोई जबर नहीं। लिहाजा कोई आदमी भी जबरन इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, न करवा सकता है। लेकिन जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, आप उनके रास्ते में रुकावट तो ना बने। आप अगर इस्लाम के जो जवाबित हैं, जो कानून हैं, जो उसूल और जवाबित हैं, उस पर अगर कानून साजी नहीं करते तो इस्लाम के मुखालिफ कानून साजी तो ना करें। ऐसा मैं ये समझता हूँ, ये जो बिल है इस वक्त दुनिया के जो मुसल्लमात कानून है निज़ाम अदल व इंसाफ, उसके भी खिलाफ। आप किसी को ये कहें कि 12 साल की उम्र में कलमा ना पढ़े, 12-13 साल की उम्र में एक बच्चा या बच्ची बालिग है और आप उसको कह रहे हैं कि 3-4 साल तक वो कलमा ही ना पढ़े, आप ऐसी शराइत के साथ मशरूत क्यों करने जा रहे हैं? और ऐसी मशरूत करके किसी बिल को आप क्यों लाना चाहते हैं? और आप ये किसको पैगाम देना चाहते हैं? आप किसको ये मैसेज देना चाहते हैं? लिहाजा पाकिस्तान के या आलम इस्लाम के लोग जितने भी हैं,
ऐसे किसी कानून को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बात बड़ी बेशक वाज़ेह है, हम मसलिहत का शिकार हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम हसास भी हैं, दुनिया के हर मसले में हम कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं, लेकिन राना साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मसला हो, इस्लाम का मसला हो, शायर इस्लाम का मसला हो, सहाबा अहले बैत अत्हार का मसला हो, हम इतने हसास हैं, हम इस मसले में किसी भी मसलहत का शिकार हुए बगैर वो बागी की दोहल डंके की चौक पे ऐसे बिल को अपनी जूते की नोक पे रख के मुस्तरद करके पैगाम देना चाहते हैं। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम सड़कों पे निकले, और अगर इस बिल के लिए हमें अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ी, कुर्बान करेंगे। इस बिल के लिए अगर अपना औलादों को कुर्बान करना पड़ा, औलादे कुर्बान करेंगे। और दुनिया का जो कुछ है हमारे पास, अगर इस बिल के रास्ते में रुकावट बनने के लिए जो कुछ हमें करना पड़ा हम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ, इस्लामियान पाकिस्तान हो या इस्लामियान उम्मत मुस्लिमा हो, उनका दिल इस बात के साथ धड़कता है तो कभी भी किसी बेशक ऐसे कानून को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो इस्लाम के मकसद से हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशक कि मेरा मुल्क चूंकि नजरिए की बुनियाद पे बना था, 1450 साल से तबलीग इस्लाम का सिलसिला इस पे जारी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई फराह पे खड़े होकर दावत दी थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए दुनिया के बसने वाले इंसानों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। राना साहब या अय्युहन्नास का लक़ब उस जीरो पॉइंट पे कोई फराह पे मक्का की सरजमीन में खड़े होके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तारीख इंसानी में या अय्युहन्नास का लक़ब नबी अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने अपनी कौम से खिताब के दौरान नहीं किया। कुरान हमें ये अल्लाह बताता है, हर नबी ने अपनी कौम को खिताब किया, या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू। हज़रत नूह ने कहा, या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम से कहा, या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा, या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहू। हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इस्माइल ने, हर नबी ने अपनी कौम को जब मुखातब किया तो या कौम के साथ मुखातब किया। लेकिन मेरे नबी सरवरे कौनैन फख्रुर रसूल दानाए सुबुल खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खिताब किया तो या अय्युहन्नास के साथ खिताब किया। ए क़यामत तक आने वाले इंसानों, ए क़यामत तक आने वाले इंसानों, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। और फिर नबी की दावत के बाद 1450 साल उम्मत का यह तामुल रहा। उम्मत ने नबी के इस पैगाम को लिया, और दाइयान सहाबा हो या ताबई हो या तिबा ताबई हो, उलमाए मुज्तहिदीन हो, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुअर्रिखीन, आज 14.5 सदियां बीत चुकी हैं। उम्मत का मिजाज रही है, जो कलमा पढ़ना चाहता है उसको कलमे की दावत दी जाती है, उसको कलमा पढ़ने का कह दिया जाता है। लेकिन जो कलमा नहीं पढ़ता उस पर जबर नहीं किया जा सकता। लेकिन राना साहब, ऐसी कानून साजी के रास्ते मसदूद करना मैं समझता हूँ जरूरी है। वगरना आप देखिएगा, जब आप इससे पहले एक आपने डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से बिल लाया, डोमेस्टिक वायलेंस बिल लाया आपने, आप उसमें भी बताना ये चाहते हैं आप मगरब का निजाम खानदान या मुसलत करना चाहते हैं। बिल्कुल आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ राना साहब, अल्लाह ताला के बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत निजाम खानदान है, और निजाम खानदान का एक सरबराह है मर्द, और उसके बाकी अफराद है, खातून खाना है, उसके बच्चे हैं। आप कैसी कानून साजी करना चाहते हैं कि भाई रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे बच्चा या बीवी या कोई घर में आ जाए, आप उससे पूछ भी नहीं सकते, पूछना नफ्सियाती तशद्दुद आता है, आप उसको मार नहीं सकते, मारना जिनसी तशद्दुद आता है। आप अपनी औलाद को ना नफ्सियाती तशद्दुद कर सकेंगे, ना अपनी औलाद को आप जिनसी तशद्दुद कर सकेंगे। हम कतई ये नहीं कहते आप उठें और मारपीट का बड़ा गर्म कर दें, लेकिन जो उसूल और जवाबित है, जो शरीयत के कानून है, जो अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह इस कायनात का बनाने वाला है, जो इंसान का बनाने वाला है, और जो इंसान के लिए हर उसूल और जवाबित तय करता है, ये कैसे हो सकता है कि भाई उसने इंसान के लिए जो निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम के अंदर जो कजी है, जो कमी है, उसको उनको पूरा किया जाएगा। ऐसा मैं एक बात में आखिरी करके बात खत्म करता हूँ। हमारे पड़ोस में भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है, और पूरी दुनिया के अंदर इस बात को उठाया जा रहा है भाई वो बड़े सख्त हैं,
وہ پردے کی بات کرتے ہیں، وہ حدود کی بات کرتے ہیں، وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ قاتل کو سزائے موت کی بات کرتے ہیں. اور ایک بات یہی بات ہے، حدود ہے، حدود ہے، حدود ہے، ہاتھ کاٹا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، چور کا پاؤں کاٹا جائے، اس طرح جو آدمی تہمت لگائے اس کو کوڑے مارے جائیں الی آخرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو صرف حدود کی بات نظر آتی ہے. ریحان صاحب، ایک نصاب ہوتا ہے اسکول کے اندر، مدارس کے اندر، اور اس نصاب کا حصہ ہوتا ہے کہ بھائی مختلف چیزیں. جب ایک بچہ جب اس نصاب کے پڑھنے میں کمی کرتا ہے، استاد اس کو ایک دو ضرب بھی مار دیتا ہے، استاد اس کو کوئی سزا بھی دیتا ہے تعدیباً. ابھی آپ اٹھیں اور کہیں کہ بھائی نصاب ہی مارنے کا نام ہے، آپ اٹھیں اور یہ کہہ دیں نصاب ہی کسی کی اذیت دینے کا نام ہے، یہ تو معذرت کے ساتھ یہ تو بڑی غلط بات ہوگی. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں، کس نے آپ کو کہا کہ آپ چوری کریں؟ کون کہتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کو چھوڑیے؟ بنیادی انسانی حقوق، کسی کی جان لینا یہ انسانی حق ہے. کیا آیا ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کسی کے مال کو آپ نے چرایا ہے، کیا ہر مسلمان کا، ہر غیر مسلم کا، ہر انسان کا مال محفوظ نہیں ہے؟ بنیادی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، حدود اس وقت ہیں جب معاشرے کے اندر جرم ہوتا ہے، اور جرم نہیں ہوگا تو حدود نہیں ہوگی. اسلام کا نظام ہے، وہ بڑا زبردست نظام، اور آپ اس نظام کی بنیاد پہ یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر حدود ہیں. تو معذرت کے ساتھ جب جس طرح استاد بچے کو مارتا ہے ادب سکھلانے کے لیے، سبق یاد نہ کرنے پہ، تو معذرت کے ساتھ وہ مار اس کے نصاب کا حصہ نہیں ہوتی. اس طرح حدود اسلام کے نصاب کا حصہ نہیں ہے. وہ تو جہاں کمی کجی رہ جائے، جہاں کمی کوتاہی رہ جائے، وہاں یہ ہے کہ بھائی آپ اس کی اصلاح کے لیے چور کے ہاتھ کٹیں گے، دوبارہ چوری نہیں ہوگا. یہ بات مسلم ہے. جب حدود کا نفاذ ہوگا برائیوں سے بچیں گے، حدود کا نفاذ ہوگا ظلم سے بچیں گے، حدود کا نفاذ ہوگا ہر قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بچیں گے. یہ اسلام کا نظام. اور جہاں صاحب میں آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا کوئی بھی قانون جو دنیا کے مسلمات کے خلاف ہو، دنیا کے نظام عدل و انصاف کے خلاف ہو، آئین کے، دستور کے خلاف شریعت ہے، قرآن و سنت کے متصادم ہے، ایسے قانون کو ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مطابق ہے. میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ارباب اقتدار، ملک کے سلامتی کے اداروں کو کہنا چاہوں گا، ایسی قانون سازی نہ کریں جس سے آپ اللہ کے حضور کیا پیش. اور جن 10 لاکھ لوگوں نے اس ملک کے بننے میں قربانیاں پیش کی، جن بچیوں کی عزتیں پامال ہوئی، جو خواتین بیوہ ہوئی، جو بچے یتیم ہوئے، ہم نے کل قیامت کے دن کس منہ سے ان کا سامنا کرنا ہے؟ اس لیے خدا را اس ملک کے اندر سیاسی قانون سازی کا حصہ نہ بنی. یہ رانا صاحب. سر جزاک اللہ. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے بہت ہی اہم ایشو پہ ڈسکس کیا. ہم سیٹرڈے کے پروگرام میں لیگل ایشو ود سولوشن میں اس پہ بات کر رہے تھے. اور ایک یہاں کے حوالے سے میں بتا دوں، میں یہاں پہ ایک ہماری تنظیم ہے کرسچن مسلم ریلیشن شپ، وہاں اس میں یا چرچ کے پادری بھی اس میں حصے دار ہیں، پاسٹر بھی حصے دار ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو مفتی صاحبان، امام صاحبان یہاں ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں. میں اس کا ممبر ہوں. اور وہاں پہ چیدہ چند لوگ آتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہی جاتی ہے کہ جو اسلام کا نظام ہے، اسلام کا خاندانی نظام کا جو طریقہ کار ہے، وہ سب سے زیادہ مضبوط اور مربوط ہے. ہم اس چیز کو کھو چکے ہیں، اور ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور ہمارے یہاں اس کی گنگا الٹی بہنے جا رہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت اچھا آپ نے اس موضوع کو چھیڑا. اور میری معلومات کے مطابق یہ بل جو ہے نامنظور ہو گیا ہے بھاری اکثریت سے، جو مجھے یہاں پتہ چلا ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. اچھا سر، ایک ہی سوال تھا، وہ کافی طویل تھا. میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک ہی سوال آج رکھ لیتا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. نماز جماعت کے دوران جو ذیل کے مامور ہوتے ہیں، نمازیوں کا مقدار میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے آج کل کے حالات میں، تاکہ نماز کے صحیح ہونے کو نقصان نہ پہنچ سکے؟ اور پھر اس میں ماموم کے جو سجدہ کرنے کی جگہ کا تعین ہے، وہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ راج صاحب، میں مختصر سی بات کرتا ہوں. عام حالات کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول یہ تھا، انہوں نے
एक शख्स मुकर्रर किया हुआ था कि वो सफ़ों की दुरुस्तगी को देखता, जब सब सीधी हो जाती तो फिर वो नमाज पढ़ाते थे इकामत के बाद। सही। अभी रोज नमाज के वाजिबात में से यह है कि सफ का सीधा होना, बिल्कुल सफ सीधी। लेकिन इस वक्त कबड़ के हालात जो पूरी दुनिया में चल रहे थे, उसकी वजह से राणा साहब फर्ज के अंदर कभी भी कमी कोताही देखी जा सकती, फर्ज को नहीं छोड़ा जाता, लेकिन सुन्नत तो सुन्नत के करीब चीजें हैं उनको छोड़ा जा सकता है। अगर आप सिर्फ इस वजह से बीच में फासला रखना चाहते हैं, भाई एसओपीज पर अमल हो, इस मजबूरी की वजह से आप फासला रख सकते हैं एसओपीज के हवाले से। और ऐसे ही अगर वो खुली जगह है, खुली जगह जिसे वो मसाजिद के अंदर होता है, एक सफ छोड़ के भी एक सफ पढ़ी जा सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात जहन नशीन रहे राना साहब कि सिर्फ मर्ज के दौरान है या वबाई अमराज के दौरान है। वैसे ये है कि आप कंधे के साथ कंधा, टखने के साथ टखना मिला के नमाज पढ़ेंगे, ये वाजिबात जी राना। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, आज के लिए इतना ही। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह सलामत रखे आपको। और आने वाले दिनों में मजीद अगले जुमे फिर बात करेंगे आपसे और मजीद जानना चाहेंगे इसी हवाले से। ये जो मौजू है इसके ऊपर आपके पास क्या पेशरफ्त हुई, आपको क्या इसकी खबर मिली। और अल्लाह ताला सलामत रखे आप जैसे उलमा को जो हक की बात करते हैं, हक की बात कहने में ज़रा हुकूमत वक्त को या मसलहत को मद्देनजर नहीं रखते, सच बात को कहने में जरा आर नहीं करते। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया सर, इजाज़त चाहेंगे और आपको अल्लाह की सुपुर्द करते हैं देखने वालों के साथ। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह की सुपुर्द, अस्सलाम वालेकुम।